हाय एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 5 जो कि इकोनॉमी के करंट अफेयर्स का है। चलिए शुरू करते हैं। बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 का से हम पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। Amendment has been brought as banking sector has evolved over years and seeks to improve bank governance. बिल ने प्रपोज किया है कि जो RBI एक्ट है 1934 का उसको अमेंड किया जाए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, SBI एक्ट 1955 का, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 and Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Act 1980 की प्रोविजंस देख लेते हैं बिल का। देखिए, इंक्रीज्ड नॉमिनी है, अलाउस करता है डिपॉजिटर्स को नॉमिनेट करने के लिए अप टू 4 नॉमिनी साइमल्टेनियसली विद प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर्स स्पेसिफिक एंड सक्सेसिवली। सक्सेसिव नॉमिनेशन की वहीं पे अगर बात की जाए तो बहुत सारे नॉमिनी जो है लिस्टेड है, बहुत सारे स्पेसिफिक ऑर्डर में। nominees would be contacted for claiming and funds according to order. Investor Education and Protection Fund enable करता है ट्रांसफर किसका, unclaimed dividends का, शेयर्स का एंड इंटरेस्ट का और रिडम्पशंस का bonds to IEPF when they remain unclaimed for 7 consecutive years. बिल क्या करता है, अलाव करता है इंडिविजुअल्स को टू क्लेम ट्रांसफर रिफंड्स फ्रॉम IEPF. Okay, provisions for cooperative bank extend tenure. Okay, substantial interest in shareholding threshold in shareholding has been increased from rupees 5 lakh to rupees 2 crore for directorships. Provisions for cooperative banks extends tenure of directors in cooperative banks 8 साल से 10 साल कर दिया गया है. इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शंस की बात करें तो ये एस्टेब्लिश्ड था अंडर कंपनीज एक्ट 1959 बाय वेज ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1999. एम की बात की जाए तो इन्वेस्टर्स अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शंस ऑफ इंटरेस्ट इन इन्वेस्टर्स. Investor Education and Protection Fund Authority under Ministry of Corporate Affairs has responsibility of administering IEPF. Okay, अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की तो सिग्निफिकेंस को वहाँ पे देखा जाए, प्रोवाइड करती है कंसिस्टेंसी इन रिपोर्टिंग टू RBI, रिड्यूस करती है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स over 42,000 crore in March 23 by increasing nominee number. Unclaimed deposits are balances in savings current accounts that are not operated for 10 years or term deposits not claimed within 10 years from date of maturity. RBI revised NPAS provision norms for cooperative bank. So need for new norms arises as some banks were not recognizing required provisions for non-performing assets as an expense. These new norms applicable to urban, state and central cooperative banks will bring uniformity in treatment of bad and doubtful debt reserve. Several cooperative bank established BDDR for financial stability for managing bad loans. न्यू नॉर्म्स जितने भी प्रोविजंस है जो BDDR से रिलेटेड है या फिर दूसरे हेड से, इनकम रिकॉग्निशंस के अंदर एसेट्स क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स मस्ट बी चार्ज्ड एज एन एक्सपेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, after accounting for all provisions as per IRACP norms and other regulations, cooperative bank may make appropriations of net profits to BDDR. Steps taken for reform in cooperative bank. Banking Regulations Amendment Act 2020 brought management, governance, etc. under RBI's purview. Umbrella Organization for Urban Cooperative Bank, National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies Limited. Cooperative bank की बात करें तो ये वर्क करती है ऑन प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड आर owned and operated by their members. Can be divided into rural and urban cooperative bank. Issues क्या क्या है cooperative bank के साथ, जैसे कि regional disparity है, almost 82% of total UCBS
And around 90% branches of all UCB are concentrated in western and southern region of country. Dual regulations, managerial, administrative activities are overseen by state government, while banking activities are regulated and supervised by RBI, NABARD. अदर इश्यूज की वहीं पे अगर बात देखें तो inadequate avenues है for raising capital, high gross non performing assets है. फ्रंट रनिंग, एसबीआई नोटिफाई करता है नॉर्म्स फॉर म्यूचुअल फंड्स ताकि जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके. फ्रंट रनिंग refers to usage of non-public information to directly or indirectly buy or sell securities or enters into options future contracts in advance of a substantial order. Securities and Exchange Board of India अंडरमाइन करता है कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल मार्केट्स में, क्रिएट्स करता है अनइवन प्लेइंग फील्ड और अदर इन्वेस्टर्स, इलीगल है इंडिया में. वाइट कैटेगरी सेक्टर्स की चलिए बात देख लेते हैं. वाइट कैटेगरी सेक्टर्स विल नाउ नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द स्टेट पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड्स टू एस्टेब्लिश्ड एंड ऑपरेट अंडर द एयर एक्ट 1981, वोटर एक्ट 1974. Permission, officially known as consent to establish and consent to operate, are granted to regulates industries that discharge effluents or emit pollutants into the environment. White category industries will have to inform SBPCBs through self-declarations. Okay. White category sectors, those industries जो practically non-polluting है उनको white category के अंदर क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है. और ये किसने किया है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने. इंक्लूड्स करता है जैसे विंड हो गई, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, एयर कूलर्स की असेंबली, बाईसाइकिल्स की असेंबली, क्लाइमेट रेजिलेंट एंड बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स रिलीज्ड. सो प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज किया है 109 हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिलेंट एंड बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स. The crops have been developed by the Indian Council of Agricultural Research and release of new varieties of crops. Example है Lab to Land program. ICAR has been running crop improvement program to develop new crop varieties and hybrids with wider adaptability and higher yield. Crop improvement processes use करती हैं different strategies जैसे कि genomics, assisted selections, phenomics, systematic measurement and analysis of qualitative and quantitative traits, conventional breeding और biotechnology based approaches जैसे कि genetic engineering and genome editing. नीड क्या है क्रॉप इम्प्रूवमेंट का वो देख लेते हैं. देखिए, मैनेजिंग इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट रेजिलेंट सीड्स कैन yield good crop even in adverse weather, heat waves, drought, etc. BT cotton. क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप्स रिड्यूस करेगी क्रॉप लॉसेस को ड्यू टू डिजीजेस एंड पेस्ट अटैक्स. फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चरल ईल्ड्स आर प्रोजेक्टेड टू ड्रॉप बाय 16% बाय 2030, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है. न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सीक्स टू प्रमोट बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स बाय लिंकिंग देम विद द प्रोग्राम लाइक मिड डे मील, PM पोषण स्कीम एटसेट्रा टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. ऑल्सो अफोर्डेबल है क्योंकि जो बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज है क्रॉप की इन्वॉल्व नहीं करती कोई भी एडिशनल कॉस्ट ऑन प्रिपेयरिंग द एनरिच्ड गुड फूड ग्रेन्स. एग्जाम्पल जैसे विटामिन E रिच मेज ग्रेन. राइजिंग फार्मर्स इनकम, हाई यील्डिंग एंड अडेप्टेबल क्रॉप वेराइटीज कॉन्ट्रीब्यूट करती है टू हायर इनकम्स. बायोफोर्टिफिकेशंस अगर हम देखें तो प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिशन क्वालिटी हम इम्प्रूव कर देते हैं फूड क्रॉप्स की. फॉर एग्जांपल जैसे आयरन एंड जिंक रिच व्हीट ग्रेन्स डिफर करता है कन्वेंशनल फोर्टिफिकेशन से क्योंकि ये इंक्रीज कर देता है न्यूट्रिएंट लेवल्स को क्रॉप्स में जब प्लांट की ग्रोथ होती है रादर देन थ्रू मैनुअल मीन्स ड्यूरिंग प्रोसेसिंग. लैब टू लैंड प्रोग्राम क्या होता है, प्रमोट्स करता है ट्रांसफर ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन टू द फार्मर्स. थैंक यू सो मच.